everyone, let us start the scope of translation. We must know what is translation's scope. So let us start. First of all, we must know who is the father of translation. Saint Jerome, Latin in full, Eusebius Hieronymus, pseudonym Sophronius, born century 347, Stridon, Dalmatia, died 419 or 420, Bethlehem, Palestine, feast day September 30. Biblical translator and monastic leader, traditionally regarded as the most learned of the Latin fathers. तो सेंट जेरोम को जो है फादर ऑफ ट्रांसलेशन की उपाधि दी गई है. So let us know about what is scope of translation. In the earlier days, translation was considered to be a sub-branch of linguistics. Gradually, it developed into an interdisciplinary field of study. In the last 3 decades of the 20th century, translation studies started functioning as an autonomous branch of study. शुरुआत में जो ट्रांसलेशन का कोर्स था उसको सब ब्रांच माना जाता था लिंग्विस्टिक्स का, लेकिन धीरे धीरे ये इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड इंडिपेंडेंट बन गया अपने आप में. और लास्ट 3 डिकेड से जो 20th सेंचुरी के ट्रांसलेशन स्टडीज़ जो है वो अपने आप में एक ऑटोनोमस ब्रांच है स्टडी की. टुडे इन दिस एज ऑफ ग्लोबलाइजेशन द स्कोप ऑफ ट्रांसलेशन इज इमेंस. It stretches from our immediate environment to every sphere of life. The significance and relevance of translation in our daily life is multidimensional and extensive. Translation helps us to know about the development in the field of creative arts, education, literature, business, science, and politics. It has shifted from the traditional conception of the fixed, stable, and unchangeable nature of the text and its meaning to a text with wide scope for variations. तो ग्लोबलाइजेशन का जैसे कि एज स्टार्ट हो चुका है तो ट्रांसलेशन का स्कोप बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है. इसमें क्या है कि हमें मल्टी डायमेंशनल और एक्सटेंसिव जो व्यू है लाइफ का, डेली लाइफ का, वो मिल जाता है अगर ट्रांसलेशन का स्कोप हमारे पास है. तो ट्रांसलेशन की वजह से हम जो है बहुत सारे फील्ड्स में काम कर सकते हैं. क्रिएटिव आर्ट्स, एजुकेशन, लिटरेचर, बिजनेस, दूसरी भाषा के टेक्स्ट से हम ज्ञान ले सकते हैं, उसके मीनिंग को समझ सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें हम दूसरी भाषाओं से ट्रांसलेशन के माध्यम से सीख सकते हैं. There is no as such dearth of jobs in translation field due to bilateral relation among countries, mushrooming of MNCs, BPOs, etc. There is also good scope of these translators in government sector. One can also associate with Indian National Scientific Documentation Center (INSDOC) in Delhi for better opportunity. The package is well nourished. One can get from rupees 10 lakh to from 10,000 to 1 lakh. It depends upon the experience and knowledge. तो ऐसे कोई कमी नहीं है ट्रांसलेशन का कोर्स करने के बाद कि भाई जॉब नहीं मिलेगी, क्योंकि आज के दिन बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं, बीपीओज़ हैं, ये खुली हुई हैं, तो उनको ट्रांसलेटर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है. और गवर्नमेंट सेक्टर में भी बहुत अच्छा स्कोप है, जैसे कि INSDOC है दिल्ली में, तो वहाँ पर बहुत अच्छी जो नेशनल साइंटिफिक डॉक्यूमेंटेशन किया जाता है वहाँ ट्रांसलेटर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. तो 10,000 से 1 लाख रुपए तक एक ट्रांसलेटर कमा सकता है. डिपेंड करता है कि उसका एक्सपीरियंस कैसा है, नॉलेज कितनी है. After technological revolution, translation has become a rewarding career. Overseas markets have also generated big avenues. All the government ministries require junior translators, senior translators, subject experts, and assistant director for official languages. तो टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन जब से आया है तो ट्रांसलेशन बहुत ही रिवार्डिंग करियर के रूप में उभर कर आया है. ओवरसीज़ मार्केट जैसे कि दूसरे देशों से भी हमें काम पड़ता रहता है. ये बहुत बड़ा एक जो है कार्य के रूप में, कार्य क्षेत्र के रूप में उभर कर आया है. बहुत सारी गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज़ जो हैं, सारी की सारे गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज़ जो हैं उनको जूनियर ट्रांसलेटर्स की, सीनियर ट्रांसलेटर्स की, सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स की और असिस्टेंट डायरेक्टर्स की ऑफिशियल लैंग्वेजेस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है. तो ये एक बहुत ही बेहतरीन स्कोप है ट्रांसलेशन का. तो ट्रांसलेटर जो है वो अच्छी अर्निंग एक कर सकता है. मीडिया ट्रांसलेशन. With the mushrooming of media industries in the print, electronic, visual and auditory media, newspapers, magazines, radio, television, cinema, internet-enabled entertainment services, especially in the regional languages,
The need of translators from one language into another has increased manifold. Publication of newspapers and journals and running TV channels in the local as well as national languages have become an exciting and rewarding business and offers multiple avenues for employment and engagement. In the cinema industry, translators are also engaged to take the films to the masses in several languages through dubbing and subtitling. There is no dearth of opportunities for people having good command over the source language and the target language and sound knowledge of the media where they wish to work. तो मीडिया ट्रांसलेशन के क्षेत्र में तो बहुत ही ज़्यादा स्कोप है, जैसे कि मीडिया इंडस्ट्री बहुत उभर कर आ रही है। प्रिंट मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, विजुअल और ऑडिटरी मीडिया है। जैसे कि हम एग्जांपल ले सकते हैं, प्रिंट मीडिया में आ जाएगा न्यूज़पेपर, मैगज़ीन, और ऑडिटरी जो मीडिया है उसमें आ जाएगा हमारा रेडियो, विजुअल में टेलीविज़न है, सिनेमा है, इंटरनेट से रिलेटेड एंटरटेनमेंट सर्विसेज हैं, और जो क्षेत्रीय भाषाओं में है खासकर वहाँ तो ट्रांसलेटर की बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है। और पब्लिकेशन जो न्यूज़पेपर्स और जर्नल्स का है, रनिंग टीवी चैनल्स हैं लोकल और नेशनल लैंग्वेजेस में जो चल रहे हैं, वहाँ भी बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट का स्कोप है ट्रांसलेटर के लिए। और सिनेमा इंडस्ट्री में ट्रांसलेटर्स बहुत ज़्यादा बिज़ी रहते हैं फिल्म्स को जो है बहुत सारी लैंग्वेजेस में डब करने के लिए और उनके सबटाइटल्स देने के लिए। तो जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जो अवसर हैं, उनकी कोई कमी नहीं है अगर लोगों के पास गुड कमांड है सोर्स लैंग्वेज की और टारगेट लैंग्वेज की। सोर्स लैंग्वेज हो जाएगी कि जिस लैंग्वेज से हमें दूसरी भाषा में उस लैंग्वेज को ट्रांसलेट करना है, तो सोर्स लैंग्वेज मेन लैंग्वेज हो जाएगी, और जिसमें उसको ट्रांसलेट करना है वो हो जाएगी हमारी टारगेट लैंग्वेज। और अगर मीडिया की भी साथ में नॉलेज हो जाती है तो बहुत ही ज़्यादा स्कोप बढ़ जाता है ट्रांसलेटर को जॉब के लिए। ऑलराइट, नेक्स्ट स्कोप इज़ मशीन ट्रांसलेशन. In view of the increasing demand for translation, the complexity involved in the process of translation and absence of competent translators, the scientists and linguists have collaborated to automate translation or to aid the human translator in terms of specially designed software programs with an inbuilt mechanism for substituting the structures in the source language into a chosen language. मतलब क्या है कि जैसे जैसे ट्रांसलेशन की डिमांड बढ़ती जा रही है तो ट्रांसलेशन का जो प्रोसेस है वो जो है थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, और कॉम्पिटेंट ट्रांसलेटर्स की जो है एब्सेंस है, बहुत ज़्यादा ट्रांसलेटर्स जो है अवेलेबल नहीं है, जिसमें कि साइंटिस्ट्स हैं, दूसरी भाषाओं के, विभिन्न भाषाओं के लिंग्विस्ट्स हैं। तो इन लोगों ने मिल के क्या किया कि इन्होंने कोशिश की कि कुछ ऐसी मशीनरी या कुछ ऐसा सॉफ्टवेयर बना दिया जाए जो कि हेल्प कर पाए एक सोर्स लैंग्वेज को चोजन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने के लिए। कंप्यूटर एडेड ट्रांसलेशन, जिसको CAT CAT टूल्स कहते हैं, दीज आर इंक्रीजिंगली बीइंग यूज्ड बाय पीपल अक्रॉस द वर्ल्ड टू मीट द डिमांड्स एंड द चैलेंजेस ऑफ द ग्लोबल मार्केट। तो कंप्यूटर एडेड ट्रांसलेशन टूल्स जब बनाए तो बहुत सारे लोगों ने इसका यूज़ किया है पूरे संसार में, ताकि जो ग्लोबल मार्केट के चैलेंजेस हैं ट्रांसलेशन को लेके उसको पूरा किया जा सके। The invasion of the internet in every walk of life has enhanced the role of translation in modern life and has facilitated the use of machine translation in a big way. साथ में जो इंटरनेट का जो इन्वेजन आया है, आक्रमण हुआ है हर वॉक में लाइफ के, हर क्षेत्र में हमारे जीवन के, तो उससे रोल ऑफ ट्रांसलेशन जो है मॉडर्न लाइफ में वो बहुत ज़्यादा फैसिलिटेट हो गया, उसको सुविधा मिल गई है, क्योंकि मशीन ट्रांसलेशन एक बहुत बड़ा रास्ता है किसी भी भाषा को ट्रांसलेट करने का। While taking decisions whether to use machine translation or a professional human translator, we must be careful. तो हमें ये देखना है कि हमें भाई मशीन ट्रांसलेशन यूज़ करनी है या ह्यूमन ट्रांसलेटर को यूज़ करना है, तो वहाँ हमें केयरफुल रहने की आवश्यकता है। तो इस तरीके से हम जो है आज के दिन मशीन ट्रांसलेशन का जो फ़ायदा ले सकते हैं उसको हम नकार नहीं सकते हैं, और वो ट्रांसलेशन को जो है बहुत ही इजी बना देता है ट्रांसलेटर के लिए। तो विभिन्न प्रकार के सॉफ्टवेयर्स आज के दिन अवेलेबल हैं। अब देखते हैं जो प्रोस्पेक्ट्स क्या हैं ट्रांसलेशन में और इंटरप्रिटेशन में। जो प्रोस्पेक्ट्स फॉर ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन वेरी फ्रॉम डेस्कटॉप ट्रांसलेटर्स टू सेक्रेटेरियल, एग्जीक्यूटिव एंड पब्लिक रिलेशन असाइनमेंट्स. If you are a freelancer, you can get work in translation bureau
research organizations, international organizations like UNO, FAQ, foreign companies, Reserve Bank of India, publishing houses, etc. Alternatively, you can work in government and non-government agencies, universities, training centers and multinational companies as a regular employee. तो जो प्रोस्पेक्ट्स ट्रांसलेशन के लिए जो इंटरप्रेटर्स के हैं वो बहुत ही ज़्यादा विभिन्न प्रकार के हैं, डेस्कटॉप ट्रांसलेटर से लेके सेक्रेटेरियल, एग्जीक्यूटिव, पब्लिक रिलेशन असाइनमेंट्स को लेके कर सकते हैं। और अगर फ्रीलांसर के रूप में काम करते हैं तो आपको कहीं भी काम मिल सकता है ट्रांसलेशन का, जैसे कि ट्रांसलेशन ब्यूरोज़ में, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस में, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जैसे कि यूएनओ वगैरह है, फॉरेन कंपनीज़ है, रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया है, पब्लिशिंग हाउसेज़ हैं, किताबों वगैरह को पब्लिश करते हैं, जो मैगज़ीन्स को पब्लिश करते हैं जो, तो बहुत बड़ा इसका स्कोप है। Alternatively, you can work in government and non-government agencies, universities, training centers and multinational companies as a regular employee. और इसके अलावा आप जो है गवर्नमेंट, नॉन गवर्नमेंट एजेंसीज़ में, यूनिवर्सिटीज़ में, ट्रेनिंग सेंटर्स में बहुत सारी जगह काम कर सकते हैं। The salary may range from 10,000 to 1 lakh in accordance with your experience, knowledge and understanding of the latest happenings in the world. You should look for the job that interests you most and start preparing accordingly. In addition to all essential skills required for translation, you must have a good mastery over the computer skills. तो एक ट्रांसलेटर को बहुत ही गुड कम्युनिकेशन स्किल्स के साथ साथ कंप्यूटर स्किल्स का आना भी ज़रूरी है। Translation is not just word by word translation of text from one language to another. It is putting the soul of a text into the body of another. Before starting translation as a career, it is wise for you to have a look at the works of famous translators to have an idea of the level of originality and creativity required to make a piece of translation look natural and professional. तो ट्रांसलेशन का ये मतलब नहीं है बस एक भाषा से दूसरी भाषा में उसको कन्वर्ट कर दिया, लेकिन उसका ये ध्यान रखना है कि एक आत्मा को दूसरे शरीर में डालना है और उसका मतलब नहीं बदलना चाहिए, उसकी ओरिजिनलिटी बिल्कुल भी जो है ख़राब नहीं होनी चाहिए। It is essential that a beginner in the field of translation should understand the skills of translation before starting the translation of any work. Starting from ordinary subjects or technical subjects with less ambiguity, you should gradually move to complex and difficult texts like literary masterpieces and knowledge texts in various disciplines. Similarly, you should move from small assignments to large and projects so that you can keep on sharpening the skills to match the requirements of the employers. The more is the exposure, the more is the rate of success. तो एक ट्रांसलेटर को शुरू में छोटे छोटे असाइनमेंट्स, छोटे प्रोजेक्ट्स पे काम करते हुए बड़े असाइनमेंट और बड़े प्रोजेक्ट्स लेने चाहिए ताकि अपने एम्प्लॉयर की जो उम्मीदें हैं उस पर आप खरा उतर सकें। तो ट्रांसलेशन स्किल में बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल एटीट्यूड की ज़रूरत है और ओरिजिनलिटी जो है वो बिल्कुल भी इफ़ेक्ट नहीं होनी चाहिए। What is literal translation? We must know this. Literal translation is the first stage of translation in which we simply transfer words from one language to another. We usually resort to this kind of translation when we want the reader in the target language to understand the overall meaning of the text in the source language. This is different from the higher levels of translation in which the interpretation of the source text varies from one person to another person as the style, linguistic expressions, and undertones differ. Beginners are encouraged to start with literal translation, but at the same time they should understand the difference between the structures of the source language and the target language. तो लिटरल स्टेज फर्स्ट स्टेज ऑफ ट्रांसलेशन मानी जाती है। यहाँ पर जो है ट्रांसफ़र कर दिया जाता है वर्ड फ्रॉम वन लैंग्वेज टू अनदर, और यहाँ पर जो है जो सोर्स लैंग्वेज होती है उससे टारगेट लैंग्वेज में जब हम चेंज करते हैं तो कई बार जो ओवरऑल मीनिंग है वो चेंज हो जाता है। तो ये हायर लेवल ऑफ ट्रांसलेशन से बहुत डिफरेंट है लिटरल ट्रांसलेशन। तो यहाँ पर क्योंकि लिंग्विस्टिक एक्सप्रेशन और अंडरटोन है वो जो वेरी कर जाती है, डिफ़र कर जाती है, तो बिगनर्स को शुरुआत में इसी के लिए इंकरेज किया जाता है कि आप लिटरल ट्रांसलेशन शुरू कीजिए, लेकिन उनको जो है डिफरेंस पता होना चाहिए कि वो कितना डिफरेंटली उसको ट्रांसलेट कर रहे हैं, तो मीनिंग चेंज हो जाता है। वो चीज़ भी समझाने की वहाँ पर ज़रूरत हो जाती है एक ट्रांसलेटर को। तो इस तरीके से लिटरल ट्रांसलेशन बिल्कुल फर्स्ट स्टेज है ट्रांसलेशन की।
What is literary translation? Literary translation is one of the most popular types of translation because it makes the world literature available in the regional languages and takes the literature in the regional languages to the audience around the world. Many institutions at the local, national, and international levels provide opportunities in literary translation. The classics from all the countries are being translated into the local languages, and the classics in the Indian languages are being translated into English and other foreign languages. Thus, exchange of literature from one country to another, from one state to another within a country have become a reality with the help of translation. तो लिटरेरी ट्रांसलेशन मोस्ट पॉपुलर टाइप है ट्रांसलेशन का। इसमें क्या होता है कि क्षेत्रीय भाषाओं का जो लिटरेचर है उसको वर्ल्ड लिटरेचर में की भाषा में कन्वर्ट करा जा सकता है, और जो वर्ल्ड लिटरेचर अवेलेबल है उसको क्षेत्रीय भाषाओं में कन्वर्ट किया जा सकता है, ट्रांसलेट किया जा सकता है। इस तरीके से इंग्लिश भाषा में बहुत सारा क्षेत्रीय काम जो है वो ट्रांसलेट हो चुका है, और इंग्लिश भाषा का बहुत सारा काम जो है वो क्षेत्रीय भाषा में और राष्ट्रीय भाषा में जो है वो ट्रांसलेट हो चुका है। तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं, हम एक्सचेंज कर सकते हैं साहित्य का एक देश से दूसरे देश में, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, और इस तरीके से क्या है हम बहुत सारा साहित्य पढ़ पाते हैं। Knowledge translation. The National Translation Mission, launched by the National Knowledge Commission, sponsors projects to translate textbooks and classical works in areas like sociology, history, geography, geology, medicine, chemistry, physics, mathematics, linguistics, and political science into the Indian languages so as to raise the standard of education in the respective Indian languages. Besides, it also democratizes education by enhancing the accessibility of these resources to the rural, poor, and the backward sections of society. Competent translators can get ample scope to make use of their knowledge and skills to translate the resources available in English into their own regional languages and thus enrich the repertoire of resources in the local language. तो नेशनल ट्रांसलेशन जो मिशन है उसने नेशनल नॉलेज कमीशन जो है लॉन्च किया है, जो कि स्पॉन्सर करता है प्रोजेक्ट्स को, जो कि टेक्स्ट बुक्स हैं, क्लासिकल वर्क्स हैं, सोशोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जियोलॉजी, मेडिसिन एटसेट्रा की उनको ट्रांसलेट करते हैं। और इसके साथ साथ जो है क्या फ़ायदा है इसका कि जो एजुकेशन है वो डेमोक्रेटाइज हो जाती है, कि हर कोई दूसरी भाषा के जो सोर्सेज हैं वहाँ से उसको ट्रांसलेशन फॉर्म में पढ़ सकता है, और बैकवर्ड सेक्शंस ऑफ सोसाइटी तक, रूरल पुअर पीपल तक जो है इसकी रीच हो जाती है, पहुंच हो जाती है। कॉम्पिटेंट ट्रांसलेटर्स जो है वो बहुत अच्छे से इसको ट्रांसलेट कर देते हैं और वो लोकल लैंग्वेज में लोगों के लिए इजीली अवेलेबल हो जाता है। Top 5 tips for translation. Develop your written skills in the concerned language as much as possible. तो राइटिंग स्किल्स जो है कंसर्न लैंग्वेज में, जिससे आपको दूसरी भाषा में ट्रांसलेट करना है, उसमें बहुत अच्छे से डेवलपमेंट कर लेनी चाहिए राइटिंग स्किल्स की। मच मोर कंसंट्रेशन शुड ऑन द फील्ड्स वेयर यू आर इंटरेस्टेड, गिव वेटेज टू द टर्मिनोलॉजी एंड लेटेस्ट डेवलपमेंट ऑफ दैट डिसिप्लिन। बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन देने की ज़रूरत है आपकी एरिया ऑफ इंटरेस्ट पर, और जो टर्मिनोलॉजी है, जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है उस पर्टिकुलर लैंग्वेज में, उस पर्टिकुलर डिसिप्लिन में, अगर आप साइंस में कर रहे हैं, कॉमर्स में कर रहे हैं, मैनेजमेंट में कर रहे हैं, तो वहाँ आपको जो है लेटेस्ट टर्मिनोलॉजी का ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। यू शुड हैव गुड रीडिंग हैबिट्स, फोकस मोर एंड मोर ऑन न्यूज़पेपर, इंटरनेट एंड ऑनलाइन मटेरियल्स। तो गुड रीडिंग हैबिट होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है न्यूज़पेपर पर, इंटरनेट से भी आप ज्ञान ले सकते हैं, ऑनलाइन मटेरियल पढ़ सकते हैं। डेवलप अ मोड ऑफ डायलॉग विद योर फ्रेंड्स। फॉर अ गुड राइटर इट इज़ नेसेसरी टू कल्टिवेट द गुड राइटिंग स्किल्स इन द टारगेट लैंग्वेज। द लिमिट्स ऑफ माई लैंग्वेज आर द लिमिट्स ऑफ माई वर्ल्ड। अगर मुझे सिर्फ अपनी एक भाषा आती है तो मैं अपने वर्ल्ड को लिमिट कर लेती हूँ, तो इसलिए बहुत सारी भाषाओं का ज्ञान होना आवश्यक है। इन द पोस्ट मॉडर्न वर्ल्ड, ट्रांसलेशन हैज़ बिकम सो रेलिवेंट दैट पीपल विजुअलाइज इट एज सोशो कल्चरल ब्रिज बिटवीन कम्युनिटीज एंड कंट्रीज। People now feel the importance of interacting and remaining connected with the people of other socio-cultural communities, both in their respective countries as well as countries across the world. In this backdrop, translation has acquired an increasing importance and satisfies individual.
तो पोस्ट मॉडर्न जो वर्ल्ड है हमारा, इसमें ट्रांसलेशन की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, क्योंकि ये ब्रिज का काम करता है डिफरेंट कम्युनिटीज़, डिफरेंट कंट्रीज़ के बीच में। ये जोड़ देता है डिफरेंट सोशो कल्चरल पीपल को। तो लोगों को इसकी इम्पोर्टेंस का बहुत ज़्यादा अंदाज़ा है अब, और पूरे संसार में इसकी इम्पोर्टेंस जो है वो जानी जाने लगी है। तो हम कह सकते हैं कि आज के दिन ट्रांसलेशन ने बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस जो है वो गेन कर ली है। तो चलिए देखते हैं कहाँ कहाँ से हम ये कोर्सेज़ कर सकते हैं। कैलकटा यूनिवर्सिटी CU, फॉरेन लैंग्वेजेस ऑफर अरेबिक, पर्शियन एंड फ्रेंच। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन caluniv.ac.in. Next is Jadavpur University, JU. For more information, jadavpur.edu. Delhi University, foreign languages offered are Arabic, French, German, Hispanic, Italian, Japanese, Persian, Russian. Foreign languages offer du.ac.in. Colleges, universities and institutions offer translation courses. Max Muller Bhavan for German, New Delhi. Alliance Francaise for French. For more information, afindia.org. Conventus of Spanish. For more information, this link is given here. Jawaharlal Nehru University, JNU. Foreign languages offered by JNU are Arabic, Chinese, French, German, Japanese, Korean, Persian, Russian, Spanish, Portuguese, Italian. So www.jnu.ac.in. University of Pune, foreign languages offered you can see on unipune.ac.in. The Ramakrishna Mission Institute of Culture, languages offered Arabic, Chinese, French, German, Italian, Japanese, Latin, Persian, Portuguese, Spanish. For more information, shriramakrishna.org. The Central Institute of English and Foreign Languages, CIEFL, Hyderabad. Foreign languages offered German, Roman, Russian. And link is efluuniversity.ac.in. Thanks for watching the video. Thank you. Keep watching more videos.